Hello viewer, welcome to my YouTube channel. I am Chemist. This is Imran and I have done MPhil in Chemistry, and in today's video we are going to start the chapter number first, that is some basic concepts of chemistry. These MCQs are as per the syllabus of class 11th and 12th, and these are the past paper of last 45 years. And these papers would be quite helpful for you if you are preparing yourself for medical, engineering or any other competitive test across इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, और अगर आप वाकई में केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा. अगर नहीं अच्छी लगती या कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपको किस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं. सो लेट बिगिन दिस वीडियो. पार्ट नंबर ए आर द फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव 5 फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन डैश. So we study about atomic mass unit of different elements. We have the isotopes of carbon like carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Now as you know that whenever we find out the relative atomic mass of elements, then we used carbon 12 as a reference. So answer would be carbon 12. Total number of electrons present in 18 ml of water is dash. Now we have to find out the total number of electrons that are present in 18 milliliter of water. So now as we know that if we have 18 milliliter of water, that is equal to 18 gram of water, and in turn 18 gram means 1 mole of water. As you know that in case of water we have H2O, hydrogen, atomic mass 1, we have 2 hydrogen atoms, so we have to multiply this by 2, and we have to add 16 because atomic mass for oxygen is 16. So once you multiply and add them, you will get 18 AMU, atomic mass unit. So hence that is why it is 18 gram, और 18 gram जो है that is equal to 1 mole. तो हम कह सकते हैं कि 1 mole जो है 1 mole of water contain Avogadro number of electron, and what is Avogadro number? That is 6.022 multiplied by 10 to the power 23. Now if we have 1 molecule of water, in case of 1 molecule of water, how many electrons would be there? Like in case of water we have oxygen, we have hydrogen. How many hydrogens? 2, and oxygen atomic number 8, hence it is having 8 electron. Hydrogen atomic number 1, so it is having 1 electron, but we have 2 hydrogen, so 1 plus 1 that would be 2. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 plus 2 10. अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 10. सो अब इस 10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 24 electrons would be present in 18 ml of water. Number 3, 3 gram of salt of molecular weight 30 is dissolved in 250 gram of water. The molality of the solution is. Now in this case we have to find out the molality. We are provided with molecular weight and the mass of water. ठीक है, 250 gram. Gram is the unit for mass. Now we have to find out the molality, and molality as we know that molality, which is represented by small m, is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kg, in kilogram. And we also know that moles are equal to weight of solute in gram divided by molecular weight of solute. So we can write this formula like this: molality is equal to weight of solute in gram divided by molecular weight of solute. We have replaced moles of solute with this value. ठीक है, दिस ये हमारे पास क्या है? दिस इज द फार्मूला. हमने क्या किया? मोल्स ऑफ सोल्यूट को इसके साथ जस्ट रिप्लेस कर दिया. और नीचे हमारे पास क्या है? मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, mass of
सॉल्वेंट इन kg। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ solute multiply by 1 divided by mass of solvent in kg। अब आपकी मर्जी, आपको मैंने इतने ऑप्शंस दे दिए हैं। इफ़ यू आर ब्रिलियंट इनफ सो आप इसको इसी के अंदर पुट कर दो। अगर आप थोड़े से मीडियोकर है तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, और अगर आप बहुत ही मीडियोकर है, मतलब बिल्कुल बिलो एवरेज है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इससे आप इजीली मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। मोलैलिटी इज इक्वल टू, नाउ एज यू नो दैट weight of solute is given, that is how much, 30, and sorry 3 gram of salt, 3 gram of salt, so this is 3 gram and its molecular weight is given, that is 30. So in case of molecular weight you have to add this value, then multiply this with mass of solvent in kg. Now what is the mass of solvent? That is 250 gram. How much? 250 gram. But in case of molality we have to convert it into kilogram. So for that purpose we have to add 1000 over here and 250 over here. In this case what will happen, that 250 gram would be converted into kilogram. Multiply and divide these values, you will get your answer. Molality is equal to 0.4 molal. Hence our answer would be 0.4 molal. Now the weight of 1 multiplied by 10 to the power 22 molecules of copper sulfate pentahydrate, these are the water of crystallization. We have to find out the weight of this molecule. So as you know that 1 mole is equal to Avogadro number, and Avogadro number is 6.022 multiplied by 10 to the power 23 molecules. 1 mole contains Avogadro number of molecules, and that is in turn equal to molecular weight in gram. Molecular weight in grams, जैसे हम लोगों ने वाटर के लिए किया ना, molecular weight हम लोगों ने फाइंड आउट किया। And as we know that weight of 6.022 multiplied by 10 to the power 23 molecules of copper sulfate dot pentahydrate 5 molecule of water is equal to molecular weight of copper sulfate dot 5 molecule of water. And once you find out the molecular weight, it comes out to be 249 gram. So therefore weight of 1 multiplied by 10 to the power 23 molecules of copper sulfate dot pentahydrate would be equal to 249 multiplied by 10 to the power 22 divided by Avogadro number 6.022 multiplied by 10 to the power 23, and that once you divide both these values you will get 4.14 gram. Hence answer would be 4.14 gram. ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर जो है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 molecules would be present in 249 gram of copper sulfate dot pentahydrate. ठीक है, दूसरा मेथड बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 22, दिस इज 22 molecules, तो उसका कितना मास होगा, दैट वुड बी x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई देम, x मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 दैट इज इक्वल टू 249 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 22 सॉरी. सो यहाँ पे
ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, तो हो जाएगा 249 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, जिसको आप डिवाइड करते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के ऊपर, सो यू विल गेट 4.14 ग्राम। अब ये 249 कैसा है ये तो आपको पता होगा ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मैस होता है 18, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मैस जो होता है ना, और कॉपर का होता है 63.5, इसको आप ऐड कर दो, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 4 × 16, इन सबको ऐड और मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 249 इज एन आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया, दो तरीके आपको बता दिए, एक इजी वाला और एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। आप इजी वाले कर करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, आप इसको इजीली कर सकते हो। नंबर 5, द कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है विच शोज सुपर कंडक्टिविटी हैज कॉपर इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करा है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। एज्यूम दैट रेयर अर्थ एलिमेंट यूट्रियम इज इन इट्स यूजुअल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यूट्रियम के बारे में आपको बता दिया हुआ है, बाकी आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कॉपर। तो आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आएगी। लेकिन हमारे पास यूट्रियम है, फिर हमारे पास बेरियम है, देन हमारे पास कॉपर है, ठीक है 3 टाइम्स, और ऑक्सीजन जो है वो 7 टाइम्स। अब यहाँ पे यूट्रियम का हमें पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, क्योंकि इसने बताई हुई है। बेरियम हमें पता है कि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसकी स्टेट कितनी होगी, +2। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऊपर स्टेट कितनी होती है, -2। कॉपर जो है इसकी स्टेट हमें नहीं पता, इसकी जगह हम X लिख लेते हैं। अब करना है सिंपल, वैल्यू पुट कर दो, यूट्रियम की क्या लगाओगे, +3 + 2 × बेरियम +3 × कॉपर +7 × ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल 0। अब +3 बेरियम पर चार्ज +2, फिर हमारे पास कॉपर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, X लगा देते हैं क्योंकि अननोन है, फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या लगा लेते हैं, -2, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल 0। मॉलिक्यूल के हमारे पास न्यूट्रल है, तो इनको सॉल्व करें, +3 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, +4, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, -14, दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 + 3 7 +3x इज इक्वल टू -14, दूसरी साइड आगे +14 बन जाएगा। ये 7 यहाँ से अपोजिट साइड पे जाएगा, क्या बनेगा, -7 कर लेंगे, 14 -7 कर लेंगे, और ये x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 14 - 7 हो जाएगा, और इसकी हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, क्योंकि 3 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका साइन क्या होगा, दैट वुड बी पॉजिटिव। सो जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी, राइट जो आंसर बनेगा वो होगा +7/3। दिस इज द चार्ज ऑन वर्ड, दिस इज द चार्ज ऑन कॉपर। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट C, MCQs विद 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास MCQ है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो, जब कभी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, इससे बनेगा क्या, इससे हमारे पास बनता है Al2O3। क्या बनता है, Al2O3 विच इज़ कॉमनली नोन एज एल्यूमिना। अभी अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड भी 4 होना चाहिए, तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैस आपको गिवन है किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मैस गिवन है दैट इज 27। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मैस, ठीक है। 27 इज द मैस इन ग्राम, एंड व्हाट इज द atomic mass for aluminum, that is also 27 gram
per mole, this gram will be cancel out, we will get 1 mole. This is the number of moles. अब आपके पास रेशो सिंपल आपने निकालनी है, तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन. अगर 4 मोल्स एल्यूमिनियम है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है? 3 मोल्स. अगर आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम हो, मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब 1 मोल अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे? इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1. ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एज पर द मैथ्स रूल. ये इस तरह हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4. सो हमारे पास क्या आ गया? दीज आर द मोल्स ऑफ oxygen that must be required to react with aluminium, like 27 gram of aluminium. Now these are the moles. We need to find out the number of mass. So number of moles is equal to mass divided by molar mass, and we need mass. So mass is equal to number of moles multiplied by molar mass. So number of moles of oxygen is 3 over 4, and what is the molecular mass for oxygen? Oxygen O2 16 plus 16, that would be 32 ग्राम पर मोल. तो ये 32, और इसको अगर आप कैंसल आउट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 24. मीन्स राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा. अगर हमारे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम होगा और उसके लिए ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड होगा? 24 ग्राम, ताकि उससे क्या बन सके? Al2O3 की फॉर्मेशन हो सके. नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2. A compound was found to contain nitrogen and oxygen in the ratio of 28 gram and 80 gram respectively. कहते हैं एक कंपाउंड था, उसके अंदर जब उसकी रेशो फाइंड की गई तो उसमें देखा गया कि जो नाइट्रोजन है उसकी रेशो उसकी 28 ग्राम थी, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है दैट वाज 80 ग्राम. द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज. अब इन उसको वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने क्या करना है? फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास फार्मूला बन सकता है. सो इसके लिए मैं पहले ये स्पेस जो है थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ. सो नाउ वी हैव द फार्मूला, लाइक वी हैव इफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. अगर हम लोगों ने नाइट्रोजन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? वी नीड मैस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट. एटॉमिक मास गिवन इज हाउ मच? That is 28 gram. And what is the atomic weight for nitrogen? Atomic weight for nitrogen is 14, because atomic number for nitrogen is 14. So 28 once divided by 14, what you will get? You will get 2. Now these are the number of nitrogen atom, and same is the case for number of oxygen atoms. Mass in gram divided by atomic weight. So mass in gram given is 80. So 80 over atomic weight कितना है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, तो 16 के ऊपर आप इसको डिवाइड कर दो, you will get 5. So N2 and O5. N2 and O5. Option number C is the right one. Number 3, the largest number of molecule is in dash. Now this is again a lengthy question. तो lengthy question है, but we have to do it. 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 48 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमें पता है कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर, तो हो जाएगा 2 + 16, दैट वुड बी 18 ग्राम पर मोल. So as we know that 18 gram of water, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर हमारे पास 36 ग्राम, देखो यहाँ पे कितना ग्राम गिवन है? 36. अगर 36 ग्राम वाटर होगा तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट इज अननोन क्वांटिटी, इसको हमने फाइंड आउट करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाय 18 is equal to 6.022 multiplied by 10⁻23 over 36. ये 18 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 18.
तो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपके पास जो आंसर आएगा ना, सॉरी इसको हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे 36 18 1 और ये 2 टाइम्स, तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 molecules. Now these are the molecules for 36 gram of water. Now the second is 28 gram of carbon monoxide. 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये ऑलरेडी कितना बन रहा है 28। 28 का मतलब 1 मोल, तो हम कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो हमारे पास इजी हो गया। उसके बाद हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल का मतलब होता है CH3CH2, अल्कोहल मीन्स OH लगा दो, दिस वुड बी इथाइल अल्कोहल। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हो तो आप देखोगे 2 आपके पास कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 2 5 + 1 6। तो इन सबको अगर आप ऐड और मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 46 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 46 ग्राम ऑफ CH3CH2OH है, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वुड बी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये भी इजी हो गया। रह गए पीछे 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, N2 and O5। नाइट्रोजन का जो मास होता है दैट इज 14, सो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 14। ऑक्सीजन का होता है 16, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि 5 टाइम ऑक्सीजन है। तो इन सबको अगर आप ऐड और मल्टीप्लाई कर दो तो आप पास आंसर आएगा 18 ग्राम पर मोल। तो हम लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ N2O5 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। लेकिन अगर हमारे पास ये 54 ग्राम होगा, देखो हमारे पास ये 1 मोल है, 108 होगा, सॉरी 108 ग्राम, मतलब 1 मोल अगर है तो उसका मास कितना होता है 108 ग्राम। लेकिन हमसे कितना पूछ रहा है, अगर हमारे पास 54 ग्राम होगा तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें नहीं पता, दैट वुड बी x। तो इसको आप क्या कर दो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो आप लिखोगे x मल्टीप्लाई बाय 108 दैट इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। इसको आप 54 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 1 और ये 2, तो अगर आप एवोगाड्रो नंबर को 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने 54 ग्राम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है। So we are done with all these. Now we have to find out the largest molecules. This is like A, this is B, this one is the C, और these are the D molecules. Generally मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, B, C और D के अंदर। 12.04 multiplied by 10 power 23 is the greatest. Hence option number A is the right one. The largest number of molecules is present in 36 gram of water among all the other options. Number 4. The total number of electrons in one molecule of carbon dioxide is। अब एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो कार्बन और डाइऑक्साइड, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज़ 8। लेकिन 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट वुड बी 16। तो 16 को अगर आप 6 के साथ ऐड कर देते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 22। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। ठीक हो गया। नंबर 5, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1/4 बाय वेट। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रेशियो गिवन है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज।
अब आपको रेशो गिवन है, ठीक है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेशो फाइंड आउट करनी है। तो आप एज्यूम करो कि mass of oxygen is 1 gram. Let the mass of oxygen is 1 ग्राम। तो फिर अगर ये 1 ग्राम होगा तो नाइट्रोजन का कितना होगा 4 ग्राम, क्योंकि हमारे पास रेशो कितनी है 1/4, 1:4। सो नाइट्रोजन का जो मास होगा दैट वुड बी 4 और ग्राम आएगा, ठीक है, क्योंकि मास है ना तो ग्राम आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो N2 का मतलब 14 + 14 दैट वुड बी इक्वल टू 28 ग्राम। दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 32 ग्राम। अब आप क्या करो, अब आपको ये पता है कि अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है दैट वुड बी इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट वुड बी 6.022। तो आप लिख सकते हो ना कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज़ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। और सिमिलरली अगर हमारे पास 4 ग्राम होंगे, इसके 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होंगे, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वुड बी x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4, और ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 28, और इनको अगर आप सम अप करते हो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप 4 1 और 4 7 28 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ओवर 7। तो ये तो हम लोगों ने किसके लिए कर लिया, दिस इज फॉर द नाइट्रोजन। अब इसी सेम चीज़ को आपने क्या करना है, यू हैव टू डू इट फॉर द ऑक्सीजन एटम। वी नो दैट 32 ग्राम of oxygen is equal to 1 mole, and 1 mole contain 6.022 multiplied by 10⁻23 molecules of oxygen। ये मैंने MOL लिखा है, दिस इज मॉलिक्यूल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वुड बी x। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप लिखते हो तो लिखे, नहीं तो कोई फर्क नहीं है। x इज इक्वल टू 32 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ओवर 32। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हम लोगों ने एज्यूम किया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ ऑक्सीजन ओवर नाइट्रोजन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइड बाय 32, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओवर नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वैल्यू क्या आ रही थी, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइड बाय 7। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये 32 इधर आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये 7 ऊपर चला जाएगा, मैथ्स के रूल्स हैं, ठीक है, और ये 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नीचे आ जाएगा। ये इसको क्रॉस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 32, 7 डिवाइड बाय 32 पीछे आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा, 7 रेशो। हमारे पास क्या था, 7/32, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7/32। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नाउ वी हैव MCQ नंबर 6, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग heated yields a residue weighting dash। कहता है अगर आपके पास सिल्वर प्रेजेंट है, ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट प्रेजेंट है, आपने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद उससे पीछे रेजिड्यू कितना बचेगा। तो देखो आपके पास जनरल इक्वेशन आपको आनी चाहिए कि अगर आपके पास सिल्वर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। इसके लिए आपको 2 पॉजिटिव चार्ज सिल्वर चाहिए होते हैं, सो आपका फार्मूला बनेगा सिल्वर कार्बोनेट। कहता है अगर आप इसको हीट अप कर दो, हीट अप करने के बाद आप देखोगे कि इससे क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये अगर मज़ीद हीट होगा तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, 2 सिल्वर एटम बनेंगे और साथ में इससे ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाएगी।
दिस इज़ द रेजिड्यू। ये हमारे पास क्या है, इसका रेजिड्यू जो है वो बच जाता है। याद रखो कि ये जो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, दिस इज सिल्वर ऑक्साइड, दिस इज थर्मली अनस्टेबल। क्या होता है ये, अगर आप इसको हीट कर देते हो तो ये क्या कर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिल्वर मेटल और इससे ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाती है। तो ये हमारे पास रेजिड्यू के अंदर पीछे क्या रह जाएगा, सिल्वर। ऑक्सीजन तो ऑपरेट मतलब उड़ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, गैस है, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, सिल्वर। अब इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि ये कितना पीछे रह जाएगा। सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3। सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 108। सिल्वर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 108। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हम लिखेंगे 3 × 16 क्योंकि 3 एटम ऑक्सीजन के। तो हमारे पास सारा कुछ ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 246 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉरी 216 या 276 होगा, 276 ग्राम पर मोल, 276 ग्राम पर मोल, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास 276 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं हीट के ऊपर, तो उससे हमारे पास कितना सिल्वर बनता है, ये हमारे पास बनेगा 2 सिल्वर। तो एक सिल्वर का मास कितना होता है 108, तो 2 का कितना होगा, ये हो जाएगा 2 × 108। 2 को अगर आप 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 216। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो उससे आपके पास कितना सिल्वर बनता है, 216 ग्राम ऑफ सिल्वर बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है 2.76 ग्राम अगर हो, अगर 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो उससे कितना सिल्वर प्रोड्यूस होगा। सिल्वर एज अ रेजिड्यू काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे 276 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय 2.76। ये 276 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन सब को आप कैलकुलेट कर दें और उसके बाद आपके पास आंसर जो आएगा दैट वुड बी 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर विच, ऑप्शन नंबर ए। Now the next one is MCQ number 7. M is the molecular weight of KMnO4, potassium permanganate. This is the M is the molecular weight of this. Equivalent weight of KMnO4 when it is converted into K2MnO4. ठीक है, this is potassium permanganate. This is इसके साथ एक और पोटाशियम आप लगा दो, तो कहते हैं इसके अंदर चेंजेस क्या होंगी। हम लोगों ने क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले आपके पास ये किस फॉर्म में है, ये आपके पास इनिशियली है MnO4 -1 की फॉर्म में, जब एक पोटाशियम है। जब 2 पोटाशियम लगेंगे तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट किधर होगा, के हम नहीं लिखते, पोटाशियम लिख देते हैं, सिर्फ मैंगनेट आयन लिखते हैं, तो ये बन जाएगा MnO4 -2। ठीक है, यहाँ पे जब 2 पोटाशियम लगेंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2। एक पोटाशियम है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। अब इसका मतलब है कि ये -1 से -2 तब बनेगा जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कन्वर्टेड फ्रॉम दिस आयन टू दिस आयन। अब कहता है कि इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट, इसका फार्मूला क्या होता है, मोलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ओनली 1। और मोलिकुलर वेट हमें कितना गिवन है, कहता है कि उसका मोलिकुलर वेट कितना है, दैट इज m, तो हो जाएगा m, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, या सिर्फ m हो जाएगा या m डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। Now we have question number 8. If 0.5 moles of barium chloride is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed. अब देखो इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है दैट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी होती है। अगर आपको वो आ गई तो फिर आप ये MCQ जो भी है गिवन आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, कहता है कि आपके पास बेरियम क्लोराइड है, आपने इसको सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट किया
जब इसको सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करो तो आपके पास क्या बनेगा, बेरियम फॉस्फेट बन जाएगा, बेरियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl बन जाता है। अब सबसे पहले तो अगर आप बैलेंसिंग आपकी अच्छी है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास Ba3 है तो इसका मतलब है कि हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमारे पास ये 3 मोल्स बेरियम क्लोराइड बन जाए। और उसी तरह अगर आप सोडियम को देखो तो यहाँ पे आपके पास कितने सोडियम है, 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो इसको आपने किसी तरह बैलेंस करना होगा। और उसके बाद फॉस्फेट आयन को अगर आप देखो तो फॉस्फेट आयन यहाँ पे कितने टाइम्स है, यहाँ पे ये 3 टाइम्स फॉस्फेट है, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम फॉस्फेट है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फॉस्फेट बैलेंस हो जाएंगे, ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास 6 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है, आपने करना क्या होता है, इसको थोड़ा सा सोचना होता है। अगर आपने ये बना लिया तो इसका मतलब है कि आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। देखो बेरियम क्लोराइड कितना यूज़ हो रहा है, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स हमारे पास बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 0.2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्शन किसकी हो रही है, 1 मोल बेरियम फॉस्फेट की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। कहते हैं कि अगर हमारे पास 3 मोल्स रिएक्ट करता है, इसका मैथ 0.5 हमारे पास क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 मोल्स, ठीक है। 0.5 मोल्स अगर रिएक्ट करता है 0.2 के साथ तो उससे हमारे पास क्या बनता है, 1 मोल बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास 3 मोल्स बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास इससे क्या बन रहा है, 1 मोल फॉर्मेशन किसकी हो रही है, बेरियम फॉस्फेट की। अब इसमें से सबसे पहले तो ये देखो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होता है एक्सेस, जो लेस अमाउंट में होता है, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे ये 0.2 मोल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये 0.2 लेस नंबर है, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं L.R यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। 0.5 इसका मतलब एक ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब है दिस इज द रिएक्टेंट इन एक्सेस, ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब अगर प्रोडक्ट ओवरऑल देखते हो तो किसके बेसिस पे देखते हो आप, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेसिस पे। अब इसको करने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, लाइक हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, इसको हमने रिएक्ट करना है सोडियम फॉस्फेट के साथ, Na3PO4, इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इससे सॉल्ट निकल जाता है, लाइक सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। अब हमने क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेरियम 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेरियम क्लोराइड में 3 बेरियम एटम हो जाएंगे। इसी तरह हमने सोडियम को बैलेंस करना है, फॉस्फेट को बैलेंस करना है, तो अगर हम यहाँ से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम 3 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 सोडियम क्लोराइड, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। कहते हैं अगर आपके पास बेरियम क्लोराइड जो है वो हो 0.5, बेरियम क्लोराइड कितना हो 0.5 मोल्स, और सोडियम फॉस्फेट कितना हो 0.2 मोल, तो इससे कितना बेरियम फॉस्फेट बनेगा ये हमें आइडिया नहीं है। अब दूसरा, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखते हो तो हमारे पास कितने मोल्स बेरियम की यूज़ हो रहे हैं, 3 मोल्स, और सोडियम कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल्स, और इससे हमारे पास कितने मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, इसमें से देखना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से वाला है, ठीक है। लिमिटिंग वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास है 0.2, ये हमारे पास 0.5, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, दिस वन, हिंस दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। L.E हम लिख लेते हैं, L.R सॉरी, L.R मीन्स लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है, हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्सेस रिएक्टेंट। अब हमें ये पता है कि जब केमिकल रिएक्शन ख़त्म होता है तो उसके एंड पे एक्सेस रह जाता है, पीछे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सारा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के फाइंड आउट करने हैं लाइक बेरियम फॉस्फेट के, तो उसके लिए हमें रेशो किसके साथ निकालनी होती है, सोडियम फॉस्फेट के साथ। हम लिखते हैं सोडियम फॉस्फेट रेशो बेरियम फॉस्फेट। ये मैं आपको ईजी मेथड बता रहा हूँ, वैसे आप इसको लंबा चौड़ा खींचना चाहते हैं तो वो भी आप इसको खींच सकते हो। अब इसमें से देखें अगर आप कि अगर आपके पास इसके 2 मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में, तो उससे कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। अगर आपके पास ये 0.2 होंगे, अगर
सोडियम फॉस्फेट के मोल 0.2 होंगे तो उससे कितना बेरियम फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको नहीं पता, तो आप इसकी जगह x लिख दो। इन दोनों को आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अगर आपके पास ये 0.5 मोल्स बेरियम क्लोराइड और 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट करेंगे तो इससे आपके पास 0.1 मोल क्या बनेगा, बेरियम फॉस्फेट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 0.1 मोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है। 1 मोल ऑफ सोडियम डाइनाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड loses 10 moles of electron to form a new compound Y, assuming that all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? अब ये एक और लंबी चौड़ी इसने स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, कहता है कि अगर आपके पास है N2H4, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, अगर वो डिकम्पोज होता है Y के अंदर और उसके साथ ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा होता है, तो इसमें से हम लोगों ने क्या करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है नाइट्रोजन की। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव N2H4. As we know that nitrogen is unknown, so we will write 2 multiplied by nitrogen plus 4 multiplied by hydrogen, that is equal to 0. So in case of nitrogen you can write x, and hydrogen is having positive 1 oxidation state, so that overall would be equal to 0. So 2x plus 4 is equal to 0, 2x is equal to, ये हमारे पास दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी -4, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2। अब ये हमारे पास स्टेट किस चीज़ की है, दिस इज द स्टेट ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल करके ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आ जाती है। इसको चेक करने का तरीका ये है। अच्छा, अब इसमें से अगर आप देखो द 2 नाइट्रोजन एटम विल बैलेंस द चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 हमारे पास नाइट्रोजन एटम है तो वो बैलेंस करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को। और 10 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को आप कैसे बैलेंस करोगे, अगर आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ज होगा इसको आपने क्या करना है, -2 से +3 के अंदर शिफ्ट करना होता है। जब -2 से +3 के अंदर शिफ्ट करोगे तब जाके आपके पास जो चार्ज होगा वो बैलेंस होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, +3। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड CH2O। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है कार्बन की CH2O। हाइड्रोजन की स्टेट होती है +1, ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल आप पढ़ो। कार्बन X, हाइड्रोजन हमारे पास +1 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है, दैट इज -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 कर दें, ओवरऑल दैट इज इक्वल टू 0। x +2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 से हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2, दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू नेगेटिव, दूसरी साइड पे आएगा तो +2 बन जाएगा, ये +2 आएगा तो -2 बन जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 0। ये इजी सा है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है, अ मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन इन डैश। तो मोलर सोल्यूशन कौन सा होता है कि अगर आपके पास 1 मोल सॉल्यूट है वो कितने सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम लीटर की बात करते हैं तो लीटर हम मोलैरिटी में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, मोलैरिटी में। मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, मोलल स्मॉल m, जो सबसे पहला MCQ था आई थिंक सो, वहाँ पे मोलैलिटी की हम लोगों ने बात की। तो उसमें हम जो मैस होता है सॉल्वेंट का उसको हम किस चीज़ के अंदर लेते हैं, उसको हम लेते हैं kg के अंदर या फिर ग्राम के अंदर। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, 10 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर हम मोलल सोल्यूशन की बात करते हैं, सो मोलल सोल्यूशन इज वन विच कंटेन 1
मोल ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो आप लिख सकते हो 1 मोलल इज इक्वल टू 1 मोल ओवर 1 kg। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का फैक्टर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व है। मोलैलिटी में हम वॉल्यूम की बात नहीं करते, हम मैस की बात करते हैं। नंबर 12, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड इज डैश। ये हमारे पास एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको मैंने वीडियो कराई थी, उसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के रूल्स आपको बताए थे कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, इसके साथ वाटर है, एक्वा जिसको 5 टाइम है, और फिर हमारे पास NO ग्रुप है, फिर हमारे पास क्या है, ओवरऑल इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सल्फेट आयन कर रहा है। अब सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। इसका मतलब है ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2। आयरन की स्टेट फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे आयरन प्लस 5 इंटू वाटर, वाटर इज अ लीगेंट, और 1 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ लीगेंट, दैट इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास स्टेट क्या है इसकी, +2। अब वाटर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लीगेंट है। आयरन की हमने स्टेट फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी जगह x लिख देते हैं, आयरन लिख लेते हैं, और वाटर न्यूट्रल है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको NO लीगेंड, ठीक है, इसकी स्टेट, इसके ऊपर भी चार्ज जो होता है दैट इज़ 0, तो ओवरऑल दैट इज इक्वल टू +2। यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो आयरन के ऊपर स्टेट क्या होगी, +2। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 2, ऑप्शन नंबर बी +2 इसका आंसर होगा। फिर हमारे पास MCQ नंबर 13 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैंगनीज सल्फेट इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश। इक्विवेलेंट वेट कब मॉलिक्यूलर वेट के हाफ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे ज़रा मैंगनीज सल्फेट की स्टेट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो MnSO4, सल्फेट के ऊपर, सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, +2। अगर हम इसकी प्रोडक्ट वाली साइड पे इसको लेकर चलते हैं, अगर हमारे पास लाइक इसमें से कोई एक आयन ले लेते हैं, लाइक हमारे पास हम ले लेते हैं ये वाला मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड में हमारे पास स्टेट अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा MnO4। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ -2। 4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो -2 के साथ तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, दैट शुड बी -8। और सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी -4। अगर ये -4 है तो मैंगनीज के ऊपर स्टेट कितनी आनी चाहिए, दैट शुड बी +4, ठीक है, +4 और -4 एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। इसी तरह ये +2 एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रल 0 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे कितनी है, +4। अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो फिर आपके पास ये, अगर हम हाफ करेंगे तो +2 बनेगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। MnO3 के केस में मैंगनीज के ऊपर स्टेट क्या होती है, आप लिखोगे 2 इंटू मैंगनीज प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंगनीज की स्टेट फाइंड आउट करनी है तो आप लिखोगे मैंगनीज और ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट कितनी होती है, -2 दैट इज इक्वल टू 0। सो 2 मैंगनीज -6 इज इक्वल टू 0, 2 मैंगनीज इज इक्वल टू +6, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +3। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास है MnO4 -2 आयन, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैंगनीज प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, मैंगनीज -8 इज इक्वल टू -2, सो मैंगनीज इज इक्वल टू -2, और ये यहाँ पे आएगा तो +8 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट +6 है। और अगर आप इसको देखते हो MnO4 -1 आयन, तो ये बन जाएगा मैंगनीज प्लस 4 इंटू -2 ऑक्सीजन की जगह पे
दैट ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो हम यहाँ पे 0 के बजाय -1 लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैंगनीज -8 इज इक्वल टू -1, सो मैंगनीज इज इक्वल टू -1 + 8 हमारे पास बन जाएगा +7। तो ये +7 +6 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4, तो ये हमारे पास क्या है, इसको अगर आप हाफ कर लेते हो तो तब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट वन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। देखो यहाँ पे अगर आप बात करते हो नॉर्मेलिटी की, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जो है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। मोलैलिटी के केस में क्या होता है, हम मैस की बात करते हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं करते। सो इसका मतलब है दिस इज़ इंडिपेंडेंट। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज देयर वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो मोलैरिटी जैसे हमें पता है कि हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, इन डेसीमीटर क्यूब या इन लीटर। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट of solute over volume of solution in डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। यहाँ पे अगेन हमारे पास वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट है। फॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला वेट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें से आप देख सकते हो सबके अंदर वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दीज ऑल आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर mass ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये इससे पहले भी आपको बता दिया था, तो हम लिख लेते हैं mass ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे हमारे पास mass का फैक्टर है और mass जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हिंस मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ वी हैव MCQ नंबर 15, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन दिस फार्मूला बेरियम बाइफॉस्फेट या बेरियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब हम यहाँ पे हमारे पास देखें फॉस्फोरस की स्टेट फाइंड आउट करनी है, हम लिखेंगे बेरियम +2 इंटू हाइड्रोजन, बल्कि हाइड्रोजन्स क्या होंगे 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन्स कितने टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएंगे। और फॉस्फोरस हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 इंटू ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो आपके पास है H2PO4 होल 2 का मतलब ये सारे कुछ चीज़ें जो हैं ये 2 टाइम्स है। ये क्या है, 2 टाइम्स है। तो इस 2 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करो, आपके पास देखो 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फॉस्फोरस के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 फॉस्फोरस आ जाएंगे। ऑक्सीजन 4 टाइम्स अंदर है और 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो बल्कि ये 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सही किया था। अच्छा जी, बेरियम देखो बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, स्टेट दैट इज +2। हाइड्रोजन के ऊपर स्टेट कितना है, +1। फॉस्फोरस के ऊपर स्टेट कितना है, वी डोंट नो, दिस इज x। ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट कितना होता है, दैट इज 0। 0 किधर होता है, -2। ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट जो दैट इज -2। यहाँ पे देखो +2 और +2 +2 फॉस्फोरस -8 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐडअप हो जाएंगे तो +4 हो जाएगा और 2p इज -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 फॉस्फोरस इज इक्वल टू -8 इधर आके +8 बन जाएगा ऑपोजिट साइड पे, और +4 यहाँ पे क्या बन जाएगा -4। और इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +4। और ये 2 अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
2. Now we have MCQ number 15, the oxidation state of phosphorus in barium biphosphate या हाइड्रोजन फॉस्फेट. तो हम लिखते हैं यहाँ पे बेरियम 1 टाइम है तो हम लिखेंगे 1 बेरियम, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे यहाँ पे. फॉस्फोरस हमारे पास 2 इंटू फॉस्फोरस हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे अंदर 2 टाइम्स है, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ऑक्सीजन. और बेरियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ओवरऑल न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0. अब मैंने 4 क्यों लिखा देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ दोबारा से. H2PO4 होल 2 PO2 है, ठीक है, होल 2. अब अगर आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे. 2 को फॉस्फोरस से मल्टीप्लाई कर दो 2 फॉस्फोरस बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे. और अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अंदर 2 टाइम्स है, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 ऑक्सीजन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दिया. अच्छा जी, अब बेरियम जो है ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 1 होता है. फॉस्फोरस की स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है, और ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट कितनी होती है नेगेटिव 2, और ये हमारे पास ओवरऑल इक्वल होता है 0. ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव 2, ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव 4, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 फॉस्फोरस, यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब इन सबको 2 फॉस्फोरस इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +8, ये +4 इधर आएगा तो -4 बन जाएगा, और ये +2 इधर आएगा तो -2 बन जाएगा. 2 फॉस्फोरस इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 4, 4 में से और 2 माइनस कर दो तो कितना आंसर बन जाएगा पॉजिटिव 2 बन जाएगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1. अब ये पॉजिटिव 1 किसकी स्टेट हमारे पास निकल आई है, फॉस्फोरस की, तो हमारे पास राइट ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा. नंबर 16, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the products of the reaction barium oxide with dilute sulfuric acid. कहते हैं कि अगर आपके पास बेरियम ऑक्साइड है, उसको आप रिएक्ट कर दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उससे कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उसमें से देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. तो इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है. बेरियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे. प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, बेरियम, सल्फर, हाइड्रोजन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज़ ऑक्सीजन. और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड में H2 और O2 में, तो देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगी. हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में स्टेट क्या है, -1 है ऑक्सीजन की. लेकिन अगर आप इसको बेरियम ऑक्साइड की फॉर्म में देखते हो, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की फॉर्म में क्या स्टेट होती है इसकी, ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेरियम के ऊपर चार्ज +4. इसी तरह इसका दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, दैट इज़ बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट. अब बेरियम सल्फेट के केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2. तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में होगा तो इसकी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होगा, और अगर हमारे पास बेरियम सल्फेट की फॉर्म में होगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2. सो -1 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है. हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन. आपने प्रोडक्ट्स बताने हैं कि उसमें प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है वो आपने आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन है. फिर ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी स्टेट है, -1, और यहाँ पे कितनी स्टेट है, -2. सो राइट ऑप्शन हमारे पास -1 एंड -2 बन जाएगा. अब वी हैव MCQ नंबर 3 फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन. हमारे पास ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर. सिंपल सी बात यह है कि हमने क्या करना होता है, इसके अंदर इसको बैलेंस करना है, ठीक है. एक्चुअली बैलेंसिंग हमसे मांग रहा है. तो सबसे पहले बात यह है कि आपने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जहाँ पे मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा. आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के बता रहा हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं रहा. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं उसको उतना डीपली एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका हुआ है. अब देखो आपके पास जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं. सो अगर हमारे पास ये वाला आयन है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में, ठीक है. दिस इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्यों है कि यहाँ पे
कार्बन जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास आयन है C2O4 -2, ये बन जाएगा 2 कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास बन जाएगा 2 कार्बन प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू होल, हमारे पास इसके ऊपर चार्ज -2 है तो हम -2 लिख लेंगे। 2 कार्बन -8 इज इक्वल टू -2, ये -8 उधर आएगा दूसरी साइड पे, तो ये +8 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा +6, और +6 को अगर आप इस 2 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा +3। यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्टेट है +3, यहाँ पे स्टेट कितनी है, यहाँ हमारे पास स्टेट है +4, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऑक्सीडेशन कहते हो। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास बन जाएगा C2O4 विद -2 आयन। अगर ये डिसोसिएट होगा तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन आपको नजर आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, रिएक्टेंट वाले साइड पे 4 टाइम्स है। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएंगे, और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, तो आप इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो +3 से चेंज हो रहा है किधर, +4 के अंदर, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप इसको 2 के साथ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो जाएंगे। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन हाफ होता है, दैट इज रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ में क्या होता है कि आपके पास ये आयन है MnO4 -1 आयन, अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो इसके साथ प्रोटॉन ऐड होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स ऐड होंगे, और साथ में ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, हमारे पास ये बनेगा मैंगनीज +2 के अंदर, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, H2O की फॉर्मेशन होगी। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करना है, पहले तो अगर आप इसकी स्टेट निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हो। आपके पास होगा MnO4 विद अ होल -1 चार्ज, तो मैंगनीज +4 इंटू -2 ऑक्सीजन स्टेट फॉर ऑक्सीजन, और दैट इज इक्वल टू -1, सो मैंगनीज -8 इज इक्वल टू -1, सो मैंगनीज हमारे पास हो जाएगा -1 + 8 हो जाएगा +7। तो ये +7 यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे +2 है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या कहते हो, दैट इज रिडक्शन। तो हमारे पास रिडक्शन हाफ ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो 4 × 2 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, मैंगनीज आपके पास बैलेंस हो गया, लेकिन अब इम्बैलेंसिंग किसके अंदर आ रही है, हाइड्रोजन के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 4 × 2 8, यहाँ पे 1 टाइम है, तो आप इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये हाइड्रोजन जो है ये भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्टेट के अंदर अगर एटम की फॉर्म में अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हमने चार्जेस को बैलेंस करना है। यहाँ पे चार्ज कितना है, -1, यहाँ पे कितने +1 है, 8 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे कितना स्टेट है, +2। अब देखो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप इक्वल करते हो, लेकिन पहले आप रिडक्शन हाफ तो बैलेंस करो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास है यहाँ पे चार्जेस, उसको आपने बैलेंस करना होता है। तो अगर इसमें आप देखो इससे आंसर कितना आएगा, +8 और -1 से कितना आंसर आता है, 7 आंसर आएगा, ठीक है, +7 आंसर आएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2, हमने इसको 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा, 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड कर दूंगा, तो इससे हमारे पास ये 2 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, मतलब चार्जेस सॉरी बैलेंस हो जाएंगे। जब चार्जेस बैलेंस होंगे, अब एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ है, ठीक है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 5। यहाँ पे लूज कितने हो रहे हैं, लूज आप देख सकते हो कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो ये बैलेंस नहीं है, एक साइड पे 2 है, एक साइड पे 5 है, इन दोनों को बैलेंस करना है। तो अगर आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएंगे, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सो इस हिसाब से इस पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ, और इसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास सारा कुछ जो है इसका बैलेंस हो जाएगा। तो हम ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, MnO4 -1 ये वाला, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, और
यहाँ ये कितना आपके पास है 5। अच्छा चलो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये आपके पास 2 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, MnO4 -1 प्लस ये 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 प्रोटॉन बन जाएंगे, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या बनेगा, अच्छा रिएक्टेंट वाली साइड पे ये भी तो है ना, ये वाला, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दो, ये बन जाएगा C2O4 -2। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या बनेगा, ये वाले सारा आप लिखो, इस 2 से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये जो C2 आपको नज़र आ रहा है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, ये 10 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंगनीज़ है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आयन को, मैंगनीज़ +2 आयन। और वाटर हमारे पास 4 टाइम्स है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर लो तो आपके पास पीछे रह जाएगा रिएक्शन। तो अब ये जो आयन है MnO4 ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसके साथ हम 2 लगाएंगे। ये C2O4 -2 जो है ये कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो इसके साथ हम 5 लगा देते हैं। और प्रोटॉन्स कितने टाइम्स है 16 टाइम, तो हम यहाँ पे 16 लगा देते हैं। तो अब देखो कि आपके पास राइट ऑप्शन कौन से बनेगा, 2, 5 और 16। 2, 5, ये 2 है, ये 5 है और ये 16 है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। देखो ये लेंथी क्वेश्चन था, शायद आप लोग थोड़े से इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हो, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अदरवाइज आप मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस देखें, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबर 18, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड इज। फॉस्फोरस एसिड आपको गिवन है और उसके बाद आपके पास 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आपने क्या करना है उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स याद रखो कि आपके पास PH3PO3 जो है ना फॉस्फोरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है HOH एंड OH, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फॉस्फोरस एसिड। अब इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड, ये क्या होता है, दिस इज डाइबेसिक एसिड। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं, इसके अंदर क्या है, इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। इसका मतलब है कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, दैट शुड बी 2। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब देखो आपके पास मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.3 मोलर, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.3, और बेसिसिटी कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर सकता है 2, मतलब 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप इसके अंदर अटैच्ड है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6। दिस इज द नॉर्मेलिटी फॉर फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 मॉलिक्यूल डाइसल्फर डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली आर। अब ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमसे पूछ रहे हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। तो देखो S8 की फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है एलिमेंटल फॉर्म में, दैट शुड बी 0। तो एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा आपके पास है S2F2। अब देखो फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7A से, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा -1। अगर ये -1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से आपके पास आंसर क्या आएगा -2। यहाँ पे अगर -2 है तो इसका मतलब है सल्फर की ऊपर स्टेट क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी +1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2। अगर ये इस तरह होगा तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे सल्फर के ऊपर स्टेट क्या है, दैट इज +1। तीसरा आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, 2 मल्टीप्लाई बाय +1 से आपके पास आंसर आएगा +2। रिजल्टेंट यहाँ पे कौन सा होना चाहिए -2 होना चाहिए। ये अगर इस तरह होगा तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है S8 के केस में सल्फर के ऊपर स्टेट 0 है, और हमारे पास अगर S2F2 है तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर स्टेट +1 है, और अगर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के ऊपर -2 है। 0 +1 -2, 0 +1 एंड -2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। MCQ number 20, among guess the following, identify the species with atom in
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लाइक अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं MnO4 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगनीज +4 टाइम ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -1। सो मैंगनीज ऑक्सीजन की ऊपर स्टेट कितनी होती है -2 दैट इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास हो जाएगा मैंगनीज, यहाँ पे -8 इज इक्वल टू -1, और ये -8 को उधर ले आओ तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा +7। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी है और +7 भी मौजूद है। अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, क्रोमियम है, इसके साथ साइनाइड लिगेंड है 6 टाइम्स, उसके ऊपर चार्ज एज अ होल -3 है, तो हम लिखेंगे क्रोमियम +6 साइनाइड लिगेंड एज अ होल दैट इज इक्वल टू -3। अब साइनाइड लिगेंड जो है न्यूट्रल होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू -3, ये 0 हो जाएगा। सो क्रोमियम के ऊपर स्टेट जो है वो -3 रह जाएगी। ये हमारे पास एक और है NiF6 -2। सो याद रखो फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 A से, तो इसके ऊपर स्टेट कितनी होती है -1। ये हमारे पास एज होल इक्वल होता है -2 के, क्योंकि आयन हमारे पास है। तो निकल, और ये हमारे पास हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -2, -6 इधर आएगा तो +6 बन जाएगा, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा +4। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के ऊपर चार्ज +4 है। ये हमारे पास क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड में मुझे शक पड़ रहा है कि यही इसका राइट ऑप्शन बनना चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा क्रोमियम +2 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट -2 और क्लोरीन के ऊपर स्टेट -1 दैट इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल मेरे देख लें, वहाँ पे आपको इस सारी समझ आ जाएगी कहानी। ये हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 0। ये -4 और -2 जो है ये दूसरी साइड पे आके -4 + 4 बन जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा, और 4 + 2 6। देखो क्रोमियम के ऊपर स्टेट हमारे पास +6 आ गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट होगा। पूछ रहा था ना कि कौन सा ऐसा जिसके ऊपर स्टेट +6 आएगी। 21 द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अब इसमें से बताएं कि ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक 3ClO विद -1 चार्ज, इससे हमारे पास बन जाए ClO3 विद -1 चार्ज, और हमारे पास 2 क्लोराइड आयन बन जाए ना। तब देखो यहाँ से क्लोरीन की स्टेट फाइंड आउट करो। क्लोरीन की अगर आप स्टेट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन एज अ होल, इसके ऊपर चार्ज -1 है। अब क्लोरीन ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट कितनी होती है -2, ठीक है, क्लोरीन -2 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा क्लोरीन इज इक्वल टू -1, ये -2 इधर जाके +2 बन जाएगा, तो इससे हमारे पास हो जाएगा -1। इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा +1। इसका मतलब है इस जगह पे क्लोरीन के ऊपर जो स्टेट है दैट इज़ +1। यहाँ पे स्टेट क्या है -1, यहाँ पे स्टेट आप फाइंड आउट करें तो बन जाएगा क्लोरीन +3 इंटू ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -1। ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट होती है -2, तो आप ये ऐड कर दो -1 क्लोरीन, ये अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर कितना आएगा -6 इज इक्वल टू -1। ये 6 को उधर ले जाओ तो आपके पास +6 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +5। तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे स्टेट क्या है +5 है। तो अब देखो एक जगह पे क्लोरीन आपको स्टेट दे रहा है +5, दूसरी जगह पे आपको दे रहा है -1, तीसरी जगह पे आपको रिएक्टेंट वाले साइड पे आपको +1 दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से किधर आ रही है -1 के अंदर भी, और +1 से +5 के अंदर भी जा रही है। तो अगर -1 के अंदर आ रही है इसका मतलब है दिस इज रिडक्शन, और अगर +5 में जा रही है इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है अपनी स्टेट्स 2 दफ़ा चेंज कर रहा है, नेगेटिव में भी लेकर आ रहा है, पॉजिटिव भी जा रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ disproportionation reaction, hence option number C is the right one. MCQ number 22, in aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal sodium hydroxide required to completely neutralize 10 ml of this solution. अब ये हमारे पास जो MCQ है this is from the titration, ठीक है, वहाँ से आपको ये गिवन है ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और कंसंट्रेशन आपको
या जो अमाउंट है मैसेज वगैरह आपको ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इसको करने के लिए हमारे पास ब्लैंक स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम लोगों ने इसको ब्लैंक स्पेस के अंदर ले जाना है, दिस इज़ अ ब्लैंक स्पेस, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो हमारे पास है इक्विवेलेंट ऑफ H2C2 और O4.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट होगा, एट इक्विवेलेंट पॉइंट। इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2Cl2O4.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम पर लीटर। तो हमारे पास ये बन जाएगा 6.3 डिवाइड बाय 250। अब देखो हमारे पास जो मैस गिवन है ना वो ग्राम के अंदर है, हमारे पास जो मैस गिवन है वो किसके अंदर है, एम एल के अंदर, सॉरी एम एल के अंदर गिवन है। हमने क्या करना है, इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो 6.3 ग्राम हमारे पास ये भी गिवन है, तो ये बन जाएगा कहाँ पे लिखा है 250, और 250 ml को हम लोगों ने ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम इस वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप सिंपली इस तरह करो, 250 को डिवाइड कर दो 1000 पे, जो भी आंसर आ जाएगा उसको 6.3 के ऊपर डिवाइड कर दो, और इससे हमारे पास आंसर आएगा 25.2 ग्राम पर लीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ H2Cl2O4.2 molecule of water, that is equal to strength of an acid divided by equivalent weight। तो स्ट्रेंथ कितनी आ रही है आपके पास 25.2, इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, दैट इज 63, तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी 0.4 नॉर्मल। अब ये 63 एक्चुअली कहाँ से आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लें और उसको आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट बनता है ऑक्सैलिक एसिड का 126, इसको आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपके पास आंसर 63 आएगा। और ये 63 को आप फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे लिख लेते हो, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नॉर्मेलिटी इक्वेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर लो। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इज इक्वल टू N2 एंड V2। सो अब यहाँ पे N1 की जगह पे आप क्या ले रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड H2C2 लिख दिया C2 और O4.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और N2V2 में आप क्या ले रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो। अब वैल्यूज पुट करते जाओ, इसकी वैल्यू आपको उसने दी है 0.4, वॉल्यूम 10, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ 0.1, और V2 जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो V2 फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू को इधर आके डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 ml। दिस इज़ द V2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जो यूज़ होगा दैट इज़ 40 ml। कितना रिक्वायर्ड होगा, 40 ml, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। सो अगर 40 ml हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा तो वो 10 ml ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट कर जाता है बेस के साथ, और इससे हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एसिड ऑक्सैलिक एसिड है और बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट दीज वर द फर्स्ट 22 MCQs जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम मज़ीद इसी तरह के 23 क्वेश्चंस मज़ीद सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।